कोर्ट का डायरेक्शन है। ये लाइट में थोड़ा पर देता हूँ। सभी को पता है यहाँ पे का अंदर जो है इवेंट जो है यहाँ पर मीडिया को भी एलो नहीं किया गया। अरे यार आप लोग क्या बात करते हैं, अननेसेसरी। आप इधर आए तो कैसे आए? सर ये अननेसेसरी नहीं, दिन भर हम लोग को रुकाया गया था, हम लोग को क्यों आने ही नहीं दिया रुकाया? था। आपका मीडिया क्या एक तो मीडिया आया एलो होगा। नहीं है बोला, सिर्फ एक को एलो किया, बाकी को एलो नहीं किया। आप इधर आइए, आप आइए। नहीं सब लोग इधर घुमाइए इस तरह। सर एक को आने ही दिया था। कैपिटल में बहुत सारा न्यूज रिपोर्टर है, उनको क्यों आने नहीं दिया? मीडिया जो है समाज का फायदा के लिए है। आप लोग को इसलिए फोर्थ पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी बोलता है। जी सर। आप लोग को ऐसे ऐसे बात करना चाहिए जो शांति बनाए रखेगा, कंस्ट्रक्टिव। गाली भी देता है तो कंस्ट्रक्टिव, नॉट डिस्ट्रक्टिव। तो इसलिए बोलते हैं रिसर्च करो, मीडिया को रिसर्च करो बोलते हैं। क्योंकि सुबह अब नहीं था, ये तो था। लास्ट में हम लोग मीडिया को एक तो जाओ बोला है ना, भीड़ भाड़ नहीं करना है। ये आया था, यस, आपको सबको शेयर करो बोला है। इसलिए हमेशा सेंसिटिव इशू जब आप कवरेज करता है थोड़ा से सेंसिटिव होना है। देखो ये सुबह भी हम लोग बोला है, चाहे आप लोग का साइड से भी होने से भी या कैंडिडेट का साइड से भी होने से भी, कोर्ट अगर डायरेक्शन देता है तो हम लोग कंप्लाई करेंगे। तो ये कोर्ट का ऑर्डर है। इन द कोर्ट ऑफ सिविल जज एट यूपिया डिस्ट्रिक्ट पपुमपारे अरुणाचल प्रदेश, आपका श्री चरपो तापो सोनम वर्सेस नाबम दोदम यूरुम तामिन तेची संजय तादर 12 अकुंग यंको। हाँ या अरे अकुंग जिंदा है। Learned counsel for Mr. P. Tapo is present for the petitioners. He has filed execution petition number 2024 under section 36, order 21, rule 32 and section 151 of the CPC in title suit. अब सुबह कौन बोल रहा था ना, टाइटल सूट, ये टाइटल सूट नंबर 1324. He submits that the order dated 11/11/24, wherein this court directed the defendant to refrain from disqualifying the petitioner under Article 22(3) of Ansu Constitution, has been violated by defendant number 2 and 3. He further submits that direction may be passed to DC District Magistrate Capital Complex and SP Capital Complex to execute and enforce the order dated 11/11/2024 of this court. He has also submitted a copy of the judgment of the Honorable Supreme Court in Sila Gerald and versus Puspa Dasan in CA number 7650 of 2018 to establish that instant court to empower to make a pass such orders, make the injunction order meaningful. Heard and perused, the Honorable Supreme Court in the aforementioned case, particularly in paragraph 5, 6 and 7, has observed that, among other things, an order passed validly by the competent court must be capable of execution if it has to be have meaning for the parties in the litigation. As such, I am inclined to direct DC District Magistrate Capital Complex and SP Capital Complex to enforce the order dated 11/11/2024 in miscellaneous case 1324, so that the civil rights of the petitioner is not curtailed. Furnish copy of this order to DC and the SP Capital Complex for compliance. तो हम लोग को ये इन्फोर्स कराने के लिए बोला है, तो ये ऑर्डर है। इस ऑर्डर को पढ़ते हैं। ये है केस इन द सिविल कोर्ट ऑफ
जूनियर डिवीजन यूपीआ का है। चरपम तापो सोनम वर्सेस नावम, लोदम यूरम तामिन, तेची संजय, तादर बारो एंड अकुम यंपो। ये 11/11/2024 का है। इंस्टेंट मिसलेनियस केस नंबर 1324 इन TS number 1324 is filed under section under order 39 rule 1 and 2 and section 151 of the CPC, read with section 37 of specific relief act, praying for granting a temporary injunction to suspend the amended constitution of Answer 24 in the particular article 9b, article 7 to 767, Article 22.3 and Article 22.4.1. Further, it is also prayed that the respondent number 2 be directed to not disqualify the candidate. Number 2 matlab returning officer. Disqualify the candidate instant applicant on the basis of the aforementioned article of the amended constitution. He submits that the respondent number 1, in violation of the original constitution of ANSU, amended the constitution and has brought in place certain provisions which adversely affect the right of the applicant to contest in the upcoming ANSU election. He further submits that manner in which original constitution could have been amended was not complied by the respondent number 1. He further submits that resultantly, the applicant, who was earlier a central executive member of the ANSU and eligible to have contested in the present election, now stand ineligible. Furthermore, he submits that the action of the respondent number 1 has curtailed his right to actively participate in the election process. As such, he states that the applicant faces irreparable loss of if barred for contesting in the upcoming election. He also adds that balance of convenience lies in favor of the applicant, as the respondent stands facing no inconvenience or harm if injunction is granted. However, not granting of the injunction in favor of the applicant seriously jeopardizes his rights. Lastly, he has also adds that the effect of the instant application, considering the manner in which the respondent number 1 has acted, clearly established a prima facie case in his favor. Heard learned counsel for applicant and perused the application. It is tried that court has satisfied itself with the 3 parameters to granting of injunctions. In present case, based on the fact presented before this court, it appears that the respondent number 1 unilaterally amended the ANSU constitution without compliance with the manner it should have been. As such, there appears to be prima facie case in favor of the applicant. Secondly, it appears that the act of the respondent number 1 jeopardized the right of the applicant, and as such, the same cannot be compensated in monetary terms. Needless to state that the same fact established irreparable loss in favor of the applicant. Lastly, considering the prayer made justo force with the fact of the case, it appears that the directing the respondent number 2 to allow the applicant does not affect the right of the respondent. However, on the contrary, not directing the respondent number 2 jeopardizes the right of the applicant. As such, the balance of the convenience clearly lies in favor of the applicant. Thus, considering the above observation, it appears that the applicant has successfully established all the ingredients for granting of temporary injunction in its favor. Therefore, considering the urgency of the matter, I deem it fit to waive the cognizance of Order 39, Rule 3, and I am inclined to allow the prayer for granting of ex parte ad interim injunction and directing the respondent number 2 not to disqualify the applicant based on Article 9(b)(9)(5), Article 17(6)(7), Article 22(3), and Article 22(4)(1). Further, the operation of Article 9(b), Article 17
7, Article 22.3 and Article 22.4.1 is stayed until further order from this court. The instant order shall only be applicable with respect to the instant applicant. ये हो गया आपको का। तो हम क्या कर सकते हैं? कोई पेन दार करेगा? रिटर्निंग ऑफिसर सबके परंतु रिटर्निंग ऑफिसर, उसका बाद असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर, ये दोनों ही तो इसको करेगा ना ना कोई और दूसरा है। इसका ऐसे है मैटर जो एक्चुअली ऐसे है, हाँ, उसको हम लोग ने राइट दिया तो ना सर, अच्छा, he has filed nomination, we have issued him nomination paper ना, लेकिन उसने अपना वो BSU का जो प्रेसिडेंट है उससे उसने सिग्नेचर भी लिया, GA से सिग्नेचर भी लिया, या स्क्रूटिनी सबमिट भी किया, नॉमिनेशन फॉर्म भी दिया, उसका स्क्रूटिनी हुआ। होते समय में क्या हुआ कि द पर्सन हु इज ऑथोराइज्ड टू गिव द रिकमेंडेशन लेटर, दैट इज हिज एरिया प्रेसिडेंट, ही अगेन केम इन रिटर्न, उसने सबमिट किया कि आई एम विड्रॉइंग। सर यहाँ हम लोग ने कोई इनजस्टिस नहीं किया। तो टेक्निकली जब बायलॉ का जब आ जाता है तो उसमें क्या हुआ कि उसका स्क्रूटिनी हुआ, उसको पार्टिसिपेट नहीं किया बोलते नहीं, उस स्क्रूटिनी में आउट हो गया ना, वो उसको स्क्रूटिनी मत करो तो नहीं है। नहीं यहाँ में वही बोला है कि स्क्रूटिनी में आप डिस्क्वालीफाइड कर दिया ना, उसी सर, को ये वो ऑर्डर तो इसके लिए नहीं है। नहीं, ये आपको बोल रहे हैं कि स्क्रूटिनी में आप डिस्क्वालीफाइड कर दिया ना, वो तो सर आज ही तो किया सुबह रात को। जो भी हो उस डिस्क्वालिफिकेशन को ही बोल रहे हैं, आप उसको क्वालिफाइड करना है, कोर्ट यही बोल रहे हैं। वही तो सर, आप अभी बताइए उसको करना क्या है। कॉन्टेस्ट करने देना है। टू कम्प्लाई बस, हमको मालूम नहीं है। हम लोग कोर्ट का बात को लेके इधर आए हैं। अभी क्या तारीख है? 20/11/24। टाइम क्या है? 4:57 4:57। हाँ, फोटो खींचना। No, gimana nulang? Kaso, no नहीं सर, tineta. आप देखिए ये कौन सा तारीख है, 20 तारीख ना, Kaso gyote na kaya. Kaso mo gyote na kaya. Bulo kam dangnya ta kapag kaya. Ano dangman ang mo eh. कहाँ गया है ये? आपको एक तो था ना, बहुत सुंदर लड़का एक था, बहुत जैकेट सुंदर सुंदर। आप भी तो था, बहुत सुंदर है। हाँ, नहीं मैं ज्यादा सुंदर होना है। आरो था, नो तो नहीं था क्या? हम लोग जब आया मीडिया में रिकॉर्डेड है। वहाँ केस चल रहा है, आप लोग अपना सही अगर है तो वहाँ में भी आप लोग प्रेजेंट करना है। हम बोला था ना, नहीं बोला था ना। तो इलेक्शनरिंग जो प्रोसेस है उसको रुकाना पड़ेगा। वो आपका ऊपर है, लेकिन हम लोग के लिए DCSP का ये है कि ये इंसान को है ना, आप लोग को डिस्क्वालीफाइड नहीं करना। हाँ, इधर आ जाते हो। वो कजो क्यों माना है? कोर्ट में जाना है। अगर आप लोग रहते तो कोर्ट में वहाँ में केबिट फाइल करने के लिए भी आप लोग को बोला था, केबिट भी फाइल करो ना। कोर्ट को डिसीजन, एक्सपर्टी डिसीजन दे दिया है, उसको डिस्क्वालीफाइड नहीं करना है कोई भी हालत में। सर ये तो सच में बोलना सकते हैं, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड वाला मैटर है। इलेक्शनरिंग प्रोसेस को फिर कैसे रुकाएगा? सिस्टम को आपको रुकाने के लिए कोई नहीं बोला है। रे से ड्रॉ करना पड़ेगा। नहीं, रुकाने के लिए नहीं बोला है। आप रोकने के लिए आपको यहाँ नहीं बोला है, आपको चलने के लिए बोला है। और ये एक इंसान है इसको, लेकिन एक का तो नहीं है यहाँ, ये इसका तो ऑलरेडी कोर्ट डायरेक्शन दे दिया। SP और हम दोनों इम्पोर्स करेगा। आप लोग इलेक्शन करेगा तो इनको डिस्क्वालीफाइड नहीं करना।
और इलेक्शन नहीं करना चाहता है, इसको पोस्टपोन करना चाहता है, ये अलग बात है आप लोग का। लेकिन इलेक्शन होता है तो ये इंसान को आपको क्वालिफाइड कर देना है, वो उपाय नहीं। हम बोल के भी गया था, इनकेस हमको डायरेक्शन देता है कि उन लोगों को इलेक्शन में ये करना है, तो हमको तो डायरेक्शन दिया ही नहीं, इसलिए हम ये हिस्ट्री में पहली बार होगा सर कि कोर्ट जो है स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन में कभी शामिल हुआ हो। हाँ ना। पता नहीं, ये तो जहाँ तक हम जानते हैं इट इज जस्ट एन एड इंटरिम इंजंक्शन ना, एक्सपर्टी ऑर्डर दिया हाँ, गया है। एक्सपर्टी ऑर्डर दिया गया। तो क्योंकि जब एक आदमी का सिविल राइट्स होता है उस हिसाब से ही बात किया। हाँ, लेकिन हाँ, वही सच में बोलने से तो इसको कोई कभी कभी बोलने से खराब आता है ना। सर आप भी कुछ एडमिनिस्ट्रेशन है, अंशु तो कोर्ट का नज़र में तो कोई कुछ है ही नहीं, कोर्ट मतलब मुर्दा लाशी है, तो डेड बॉडी। ले लिया तो क्या है, आपको मालूम है ना, कोई भी चीज वंस ऑर्डर इज पास, रॉन्ग और राइट, गुड और बैड, थ्रू जुडिशरी प्रोसेस ओनली यू हैव टू करेक्ट इट। कोई भी एडवोकेट इधर होगा, आप पूछ लीजिए, लॉ में कोई भी जानने वाला, ऑर्डर सही हो या गलत हो, ऑर्डर पास कर दिया तो हम लोग तो ये नहीं कर सकते हैं क्योंकि मैटर दिस मैटर इज सब्जुडाइज ना सर। सब्जुडाइज नहीं है, नहीं नहीं अंतिल ये तो ही शुड नॉट बी वही डिस्क्वालीफाइड। तो सर, उसका मतलब कि द केस इज पेंडिंग ना, इसका नेक्स्ट हियरिंग भी है। तो हम लोग ये कर सकते हैं कि ओके ही इज नॉट डिस्क्वालीफाइड का अगर करेगा बोलने से तो फिर बैलेट पेपर तो हम बोर्ड नहीं बना सकते, ऑलरेडी बना ली, तो उन लोग का हम लोग स्टे में रख सकते हैं। बाद में आप अलग से इलेक्शन करने दो, तो पोस्ट को हम लोग जो है टिल डिस्पोजल यहाँ से वी कैन कीप इट वैकेंट। आप दोनों कल को कॉन्टेस्ट करना कीजिए। ये आप एक ऑर्डर बनाइए, हम देखते हैं आप लोग ये सही है ना गलत है। वही तो क्योंकि इसका आप लोग को रेस्पॉन्स, इसका रेस्पॉन्स आप क्या करेंगे? इन राइटिंग में आप दीजिए, राइटिंग में दे दीजिए, राइटिंग में दे दीजिए। आप इसको कंप्लाई नहीं करेगा बोलते हैं तो आप राइटिंग में दे दीजिए। एक मोमेंट तो हमें बैलेट पेपर करके देखते हैं, शायद करने से कैसा रहेगा। नहीं फिर ऐसे भी है ना, दोनों का को हम पैकेट डिक्लेयर करके रख सकते हैं। दोनों नहीं, एक है। नहीं सर, इसका ओपोनेंट है तो हाँ। ही हैज बीन डिक्लेयर अनअपोज्ड हाँ हाँ ना, ही इज नॉट कंटेस्टिंग, ही हैज बीन डिक्लेयर अनअपोज्ड। तो अनअपोज होता है तो एट द मोस्ट हम ये कर सकते हैं कि सिंस आप लोग इसको अगर एग्जीक्यूट करेगा बोलेगा तो उन लोगों को हम पुट ऑन होल्ड कर सकते हैं। दिस इज नॉट डिस्क्वालीफाइड, आपको कोई केस मिल रही है। हाँ, डिस्क्वालीफाइड नहीं। ही इज नॉट डिस्क्वालीफाइड, वो हम ऑर्डर निकल दे सकते हैं। ओके, इफ टुमारो ही विंस यू कॉन्टेस्ट, आप लोग दोनों कैसे कॉन्टेस्ट करना कीजिए सिंगल होने से भी, लेकिन फॉर द सेक ऑफ ओनली वन पर्सन ना, एंटर प्रोसेस आपको हम नहीं रुका कुछ भी हो आप हमको एक लिख के दे दीजिए। ठीक है सर, मैं अभी बना लेता हूँ। कोई लीगल आदमी से कंसल्ट कर लीजिए, क्योंकि हम लोग को इसको कोर्ट का ऑर्डर को हम लोग इन्फोर्स करना है, मतलब उसको डिस्क्वालीफाइड नहीं करना है, यही तो है। डिस्क्वालीफाइड नहीं करना मतलब कॉन्टेस्ट करना। नहीं अभी तो सर देखिए, अभी इलेक्शन प्रोसेस शुरू होना है ना, वोटिंग के लिए अभी वोटर्स को आना शुरू करेंगे। ये इलेक्शन बैलेट पेपर को 21,000 पेजेस है, उसको परसों से हम लोग प्रिंट करना है, समय लग जाता है सर। तो उन लोग के लिए तो क्या है, वो दोनों का तो कल को कॉन्टेस्ट होना होगा, अनअपोज होना होगा ना, कोर्ट ही डिसाइड करेगा। कोर्ट आप अगर परमिशन दिया है, दे विल ऑल्सो फाइल, आई थिंक ओपोनेंट भी फाइल करेगा होगा। दिस इज ओनली वन साइड ऑफ द स्टोरी ना, अनदर साइड ऑफ द स्टोरी जो है, अगर सच में ये आर्टिकल्स लोग को बैकेट करना है कल को, एंड इफ कोर्ट हैज दैट ऑथोरिटी शायद करेगा होगा, इट विल बी इनफोर्सेबल। तो ये पोस्ट को सर हम बैकेट डिक्लेयर कर देगा, वही करना पड़ेगा ना टिल टाइमिंग। तो पता इसको नहीं, आप थोड़ा से डिस्कस कीजिए अपना ये। आप लोग लीगल कोई लीगल आदमी लोग से 2-3 लीगल आदमी से क्वालिफाइड करना पड़ेगा। टाइम दीजिए, हम हाँ, लोग हाँ, तक अपना हाँ, डिस्कस 2 करके घंटा, आपको रिटर्न फॉर्म में मिल जाए। हाँ हाँ ठीक है, ठीक होगा। तब तक हम लोग अभी अपना प्रोसेस को हम लोग जारी रहते रहेगा।